جی ہاں، یہ جناب ہماری آج کیا وکیبلری تھی جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے. اسکرین شاٹ بھیجیں. چلیں جی، بہت شکریہ. اچھا جناب، نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب. آگے جناب آج کے اس چیپٹر میں سٹارٹ ہو رہی ہیں مطلب ہے ملی جولی ڈیفینیشن، جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے، پیپر کے اندر اکثر آتی رہتی ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر. سیکشن 2 سب سیکشن اے کے تحت اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں 1A. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے جناب انڈسٹریل انڈرٹیکنگ. انڈسٹریل انڈرٹیکنگ جناب سیکشن 2 سب سیکشن 29C. اس کے بعد ہم نے جناب پڑھنا ہے ڈیٹ سیکشن 2 سب سیکشن 15. اس کے بعد جناب ہم پڑھیں گے پروفٹ آن ڈیٹ سیکشن 2 سب سیکشن 46. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جناب چیریٹیبل پرپز. چیریٹیبل پرپز جو ہے یہ سیکشن جناب 2 سب سیکشن 11A. اچھا، آج ہم نے صرف ان کو ہی ڈسکس کرنا ہے اور کل ان کا ہی ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے جناب کہ پہلے کل میں نے جو ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کیا چیز ہوتی ہے. ایکٹیو ٹیکس پیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ بندہ جو کہ ایک مطلب فائلر ہوتا ہے اور وہ بلیک لسٹر نہیں ہوتا. ٹھیک. اب آپ کو جناب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے فائلر کیا ہوتا ہے، نان فائلر کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ اینی ون کلاس میں بتا سکے؟ فائلر وہ بندہ ہوتا ہے جو ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے اور نان ٹیکس تو ہر فائلر بندے پے کرتا ہے، ضروری تو نہیں ہے ٹیکس. ضروری نہیں ہے کہ فائلر ہی ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے، نان فائلر بھی پے کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی ہوتا ہے. اور کوئی بتائے؟ فائلر وہ ہوگا جو ایف بی آر کے تھرو رجسٹرڈ ہوگا، این ٹی این نمبر جس کا بنا ہوگا. باقی نان فائلر جس کا یہ بالکل انکم جناب، ٹیکس ریٹ. بالکل بالکل جناب. وہ بندہ جو کہ ایف بی آر کا فائلر ہے، ایف بی آر کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فائلر. جس کے پاس این ٹی این نمبر ہوتا ہے، نیشنل ٹیکس نمبر ایف بی آر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایف ٹی این نمبر، سیل ٹیکس نمبر، تو وہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جب وہ بندہ ہوتا ہے وہ جناب رجسٹرڈ ہوتا ہے ایف بی آر کے اندر، اس کو ہم فائلر کہتے ہیں. جو فائلر ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو جو ہے ہر جگہ پہ بینک میں کسی بھی ٹیکس کے اندر کافی ساری جگہ پہ چھوٹ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس جناب کچھ بندے موجود ہیں، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جناب فائلر کون سا ہے، نان فائلر کون سا ہے، یا فائلر ہے تو ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. ایکٹیو کا مطلب ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ہم جا کر وہاں پہ ان کا این ٹی این نمبر انٹر کریں گے. وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب ہم جائیں گے اور انٹر کریں گے تو وہاں پہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ نکل آئے گا. اس میں نکل آئے لکھا ہوگا کہ جناب اس میں لاسٹ ٹائم رجسٹریشن، اس کی رجسٹریشن یہاں سے چلی تھی، کیا یہ بلیک لسٹ ہے یا مطلب بلیک لسٹ نہیں ہے. وہاں پہ بھی یہ بھی لکھا ہوگا. اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے تو پھر اس سے گورنمنٹ کی خریداری جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. ایکٹیو ٹیکس پیئر کے بارے میں کوئی کوشچن آپ کو جو سمجھ نہ آیا ہو؟ آگے چلتے ہیں جناب انڈسٹریل انڈرٹیکنگ. ہاں مس فرینا، آپ کو سمجھ آ گیا ایکٹیو ٹیکس پیئر کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، آپ کو سمجھ آ گئی اپنا نبیلہ اصغر، اسامہ ساجد، کلیم؟ جی سر.
नेक्स्ट नंबर पे जनाब हमारे पास मौजूद है क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल कहते हैं जनाब सनत। अंडरटेकिंग का मतलब होता है जो बंदा जिम्मे लेता है। Industrial undertaking means an undertaking which is set up in Pakistan and which implies 10 or more person in Pakistan and involving use of electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and it is not generated by human or animal energy which is engaged। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जनाब कोई भी एक ऐसा यूनिट जो कि जनाब वाला गवर्नमेंट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यहाँ पे सेटअप किया जाता है, जिसके एम्प्लॉय की तादाद कम से कम 10 और उससे ज्यादा हो सकती है, तो पाकिस्तान में सेटअप दिया जाता है। तो वो जनाब गवर्नमेंट की एनर्जी जो होती है, मतलब क्या कहते हैं उसको जनाब, इलेक्ट्रिकल या दूसरी एनर्जी जो भी होती है वो यूज करता है, लेकिन उसके अंदर जनाब ह्यूमन एनर्जी या जनाब एनिमल की एनर्जी को छोड़ के, तो वो जनाब क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाता है। ठीक है ना। इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं ना, वहां पे बड़े बड़े कारखाने लगे होते हैं, तो वहां पे जनाब वाला जो कारखाने लगे होते हैं, एक मिनट होल्ड में रखिए, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब वहां आप देखते हैं बड़े बड़े कारखाने लगे होते हैं और वहां पे जनाब आपको पता धुएं भी निकल रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इंडस्ट्रियल जो इलाका होता है वहाँ रिहायश नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताएं आप लोग, तमाम लोग, कि जनाब जो मतलब है कि ये कारखाने लगे होते हैं, उसमें से बताएं जनाब अगर एनिमल की एनर्जी से जरिए वो कारखाने चल सकते हैं? मतलब है कि अगर हम किसी जानवर को बतौर उससे काम लेते हैं, जिस तरह देहातों में होता है, देहातों में जनाब जो हल चलाए जाते थे ना, वो मतलब है कि वो बैल से चलाए जाते थे। देहातों में जनाब पानी जो कुएं से निकाला जाता था वो बैल से निकाला जाता था। ठीक समझ आ गई बात की? हाँ जी, मिस फरीना, अब आपने ज्वाइन कर लिया है? ठीक हो गया। तो ये जनाब मतलब ये है कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को जो है काम देती हैं उसके, चाहे वो एनिमल हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन एफर्ट हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो जाएगा जनाब? जहां पर 10 लोग या 10 से ज्यादा लोग एक जगह पर मिलकर काम कर रहे होंगे और वहां पे जनाब बिजली इस्तेमाल हो रही होगी या कोई और एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी, तो उसको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। नंबर पॉइंट 1 है, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मटीरियल are the subject of goods or material to any process which substantial changes other original condition। इस पॉइंट का मतलब ये होगा जनाब, फॉर एग्जाम्पल आप जनाब वाला ये बताएं, जो एक जूते बनाने वाला कारखाना होता है, वो ऐसा थोड़ा सा कि जनाब जूते बने होते हैं और उनको सेट कर देता है, बल्कि उनके पास कोई एक मटेरियल आता है, मटेरियल के मुताबिक उनके पास आगे मशीनरी होती है, उसके मुताबिक कि ये जनाब जूता 10 नंबर का बनाना है, ये 8 नंबर का बनाना है, यानी एक मटेरियल की ओरिजिनल जो एक हालत होती है उसको तब्दील करने में जो चीज मदद देती है उसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में क्या होता है कि जो मतलब है कि हमारे पास जो हमारे जनाब बहरी जहाज होते हैं, बहरी जहाज जहाँ पे आप रुकते हैं, बहरी जहाज जो होते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो जनाब जाएं हवाई जहाज के जरिए, क्योंकि हवाई जहाज के जरिए से 3-4 घंटे का सफर होता है। लेकिन जो जाते हैं ना जनाब इसके जरिए से, क्या कहते हैं अपना, बहरी जहाज के जरिए से, बहरी जहाज के जरिए से सफर बहुत ज्यादा लंबा होता है, वहां पर महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहरी जहाज के जो मेन सोर्स है वो जनाब तिजारत के लिए। आपने जनाब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज लेकर आनी है तो आप जहाज के जरिए, बहरी जहाज के जरिए लेकर आ सकते हैं, हवाई जहाज के जरिए से वो चीज नहीं आ सकती। देखिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जनाब वाला अपना जंगी हथियार किस तरह लेकर आया था? वो बहरी जहाज के जरिए से लेकर आया था। पाकिस्तान ने उसको जनाब कराची से रास्ता दिया और फिर वो अफगानिस्तान में गया। ठीक, अगर वो पाकिस्तान उसको रास्ता नहीं था, उसके पास और कोई सोर्स ही नहीं था। नेक्स्ट नंबर 3 है, वो कहते हैं जनरेशन, कन्वर्शन, ट्रांसमिशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी
और सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो चीजें जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील करती हैं, वो चीजें जहाँ पे बन रही होती हैं उसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये जनाब डर होता है कि बिजली चली जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर रखते हैं बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर से जब लाइट चली जाती है तो हम उसको यूपीएस के जरिए से चलाते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है जनाब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि जनाब मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसके ऊपर करंट नहीं लगता, इलेक्ट्रिकल में करंट लगता है। जब आप बैटरी के अंदर स्टोर होती है उसको हाथ लगाएं कुछ भी नहीं होगा, बिजली को हाथ लगाएंगे तो जनाब करंट लगेगा। पॉइंट नंबर 4 है जनाब द वर्किंग ऑफ एनी टाइम ऑयल और वेल और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट। यहाँ पर उसने एक बात की है कि आप जब मर्जी काम करें, लेकिन जो जनाब कुएं हैं किसके, भला तेल के कुएं हैं, यानी तेल के कुएं हैं या जनाब वो मदनियात के कुएं हैं, उनसे जो चीज हम निकाल रहे हैं वो भी हमारे लिए जनाब इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है, क्योंकि वो भी बगैर किसी मशीनरी के नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अंदर जनाब जो मतलब है कि जनाब क्या कहते हैं उसका कोयले का जो कान है, तो वो ऐसे थोड़ी जनाब वो मशीनरी जाती है तब जाके वो पूरा पहाड़ है वो टूटता है वहां से। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ए है, फ्रॉम द फर्स्ट डे May 2020 person directly involved to the construction of building, roads, bridge and other such structure of the development of land and extent or any purpose of import of plant machinery utilized such activity subject to condition may be notified by the board। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर अगर आप पढ़ें तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को हमने ठेका दिया जनाब मुल्तान में या इस्लामाबाद में, हमने जनाब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। या मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान का जनाब वाला वो है ना मोहम्मद डैम, या दूसरा जनाब जो गिलगित बल्तिस्तान में हमने बनाया कौन सा था, दियामर बादशाह डैम। दियामर बादशाह डैम को जनाब वाला चाइना की कंपनी बना रही है। चाइना की कंपनी ऐसे थोड़ा बना रही है कि वो जनाब यहाँ आई होगी, यहाँ से उसने सामान खरीदा होगा, नथिंग। उसका सारा सामान, उसकी सारी चीजें चाइना से, उसकी हैवी इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है वो सारी चाइना से। ठीक है, तो वो कहते हैं जनाब आप अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क से मशीनरी की जरूरत होती है, तो वो भी आपकी इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021 रेजिडेंट कंपनी इंगेज टू द होटल बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, होटल बिजनेस जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगी। अच्छा जी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। एंड अंडरटेकिंग इज स्पेसिफाइड बाय एफपीआर अंडरटेकिंग। अच्छा जी, इसके बाद वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का इसके अंदर एक और चीज भी आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एफबीआर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जनाब हमारे पास इंडस्ट्रियल के अंदर आएगी, पर्पस के अंदर आएगी, तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाएगा। इसके बाद जनाब हमारे पास पॉइंट नंबर ए लिखा है उसने कि एनी अंडरटेकिंग विच इज सेट बाय पाकिस्तान एंड विच इम्प्लाई 20 और मोर पर्सन इन पाकिस्तान। वो मतलब है एक जिम्मेदारी, वो एक कंपनी जो कि मतलब है जिसकी एम्प्लॉय की तादाद 20 है या 20 से ज्यादा है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मैकेनिकल ट्रांसमिटेड एंड इज नॉट जनरेटेड इन ह्यूमन और एनिमल विच इज इंगेज। वो कहते हैं जनाब अगर उसने मतलब है कि जो, अच्छा मैं आपको बताऊं ना, ये तो उसने दोबारा दे दिया, ठीक है, ये नीचे से उसने सारा दोबारा दे दिया, इसको आप छोड़ दें, नीचे डेट पे आ जाए। ये आपने ना ये जो या लिखा हो ना ओ आर, उसके बाद आगे नीचे नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है डेट। डेट किसे कहते हैं? डेट कहते हैं जनाब एक कर्जे को। डेट वो चीज होती है जो जनाब आप एक कंपनी ने वापस करना है, किसका, बैंक का है, किसी मतलब है बंदों को लिया हुआ है, उसको डेट कहते हैं। आपने बैंक से कर्जा उठा रखा है, स्टेट बैंक से आपने जनाब यूपीएल से उठाया हुआ है, आपने जनाब नेशनल बैंक से उठाया हुआ है, कंपनी आपकी बहुत बड़ी है लेकिन आपने काफी सारी जगहों से कर्जा उठा रखा है, तो जनाब आपने जितना भी कर्जा उठाया रखा उनका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, डेट कहलाएगा। डेट क्या होता है? जो पेएबल होता है। That means any amount owing including
वो अमाउंट जो कि आपके ऊपर लागू है। नंबर 1 अकाउंट पेबल, यानी अकाउंट पेबल वो अमाउंट होती है जो आपने देनी होती है, जिसका आपने इस्तेमाल कर लिया होता है लेकिन अब आपने देनी है, ये एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है। प्राइमरी नोट जो होता है लाइक दैट, जिस तरह जनाब वाला एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसी तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जनाब 3 पार्टियां होती हैं, जबकि प्राइमरी नोट के अंदर जनाब 2 पार्टी होती है। इसके अंदर वादा किया जाता है कि जनाब 3 महीने के बाद हम आप रकम जो है अदा कर देंगे। इसके बाद डी ऑप्शन है डिबेंचर। डिबेंचर जो है ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है। डिबेंचर के अंदर ऊपर जो है जो कंपनी एक डिबेंचर इशू करती है किसी शेयर होल्डर को, तो डिबेंचर के ऊपर क्या है, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, नो इशू, लेकिन डिबेंचर होल्डर को जनाब उसका प्रॉफिट हर हाल में मिलेगा, वो फिक्स होता है, कोई उसके अंदर मतलब कमी बेशी नहीं होती। इसके बाद एनी अदर सिक्योरिटी हो सकती है, कोई और सिक्योरिटी हो सकती है, शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई जनाब प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, कोई जनाब गोल्ड हो सकता है। इसके बाद प्राइस बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि जनाब अगर आप अपने कोई और मतलब माली कोई दस्तावेजात रखा के और वो उसके अगेंस्ट आपको किसी को कर्जा देते हैं। फॉर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आप कर्जा लेते हैं, बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है जनाब मुझे कोई गारंटी दे। बैंक कहेगा या तो आप अपने घर के कागज दे दें या आप अपनी जमीनों को कागज दे दें, प्लाज कर लेता हूं मैं। तो वो जो हम एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं या हम अपनी कंपनी के जो कागज हैं वो दे देते हैं, तो हमारी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है कि एनी अमाउंट पेएबल बाय द पर्सन इज कॉल्ड डेट वेदर द सच अमाउंट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इंटरेस्ट बेरिंग ऑन इंटरेस्ट फ्री, ट्रेड डेट और एनी अदर ट्रेड। उसने कहा कि जनाब वो अमाउंट जो एक बंदे ने देनी होती है, चाहे वो जनाब लॉन्ग टर्म पे हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म पे हो, चाहे वो जनाब उसके ऊपर इंटरेस्ट देना हो या चाहे ना देना हो, लेकिन उसके ऊपर ड्यू हो, तो वो जनाब क्या कहलाएगा, डेट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब होता है, जो हम डेट लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उस कर्जे के ऊपर जो मतलब है हमें क्या देना पड़ता है, मतलब है कि उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है जनाब वाला, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट जो होता है ये पेबल भी होता है, रिसीवेबल भी होता है। क्यों, अगर जनाब एक जनाब वो होती है क्या कहते हैं जनाब बैंक होता है, बैंक के लिए जनाब रिसीवेबल है और जो बंदा दे रहा है उसके लिए पेबल है। जो पेबल है उसकी जिम्मेदारी है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट है। बात समझ आ गई। एनी प्रॉफिट यील्ड इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम और एनी अदर अमाउंट विच इज अंडर डेट और रिटर्न कैपिटल। और इसके बाद वो कहते हैं कि एनी सर्विस फ्री और चार्ज ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डेस्ट। पर इसको आप ध्यान में रखिएगा कि वो अमाउंट हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 करोड़ आ गया, आप कहते हैं कि जनाब मुझे बैंक ने 2 करोड़ के बदले ये ऑफर किया है कि आपको हम हर महीने 5 लाख रुपए देंगे, तो आप सोचते हैं कि चलो दफा मारो ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा कि मुझे 5 लाख तो मिल रहा है। ये जो आपको 5 लाख मिल रहा है ना, ये आपके कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने पैसे उठा रखे हैं बैंक से, बैंक आपसे वसूल कर रहा है मंथली, तो आपके लिए वो क्या है, पेबल है, बैंक के लिए रिसीवेबल है, बैंक के लिए वो प्रॉफिट है। इसके बाद नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने करनी है तो कर लेना। इसके बाद है चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पज का मतलब होता है, जी क्या कह रही हैं? ये आप अभी बता रहे थे ना प्लॉट का, ये जरा दोबारा रिपीट कर दें, कैपिटल पे जो प्रॉफिट आ रहा है। जी हाँ, ये मैं जो बता रहा था कि जनाब प्रॉफिट ऑन डेट, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा है, आप बैंक में रख देते हैं, बैंक आपको हर महीने उसके ऊपर जो प्रॉफिट देता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी बैंक आपको आपके कैपिटल जो आपने बैंक में रखा हुआ है उसके ऊपर जो दिया है, और अगर आपने बैंक से लिया हुआ है और आप हर महीने उसको वापस कर रहे हैं, एक तो आप उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे, दूसरा आप इंटरेस्ट भी वापस करेंगे। तो जो बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक के लिए प्रॉफिट भी है, बैंक के लिए रिसीवेबल भी है, लेकिन आपके लिए पेबल है। यानी अगर आप वसूल कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट है, अगर आप जनाब वाला दे रहे हैं तो आपके लिए पेबल है और बैंक के लिए रिसीवेबल है। उससे थी मैं, आपने जो एग्जांपल दी थी ना प्लॉट की, जी उसकी बात, प्लॉट की जो आप एग्जांपल दे, नोट कौन सा, ये अपना प्लाट जायदाद जिसे कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो मैं बताता हूँ। देखे आपने बैंक से लेना है ना कर्जा, ठीक है,
बैंक आप क्या मांगेगा, आपसे गारंटी मांगेगा, तो आप गारंटी के बदले कुछ ना कुछ तो उसको दोगे। तो आप कहते हैं सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, बैंक कहता है जी आपकी जायदाद की प्रॉपर्टी जो है, तो आप कहते हैं हाँ जी हाँ मेरे पास ना मेरा घर खड़ा हुआ है 10 मरले का। तो वो कहता है ठीक है, आप 10 मरले के जो कागजात है वो हमें दे दें, तो हम उसके बदले आपको इतना पैसा दे देंगे। बैंक क्या करेगा, उस मकान की मालियत लगाएगा, उस मालियत का आधा पैसा जो होगा ना वो आपको देगा। ठीक, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग उसको पे करने में नाकाम होते हैं तो बैंक आप मतलब नीलाम कर लेगा, वो हक है क्योंकि आपने लिख के दिया हुआ है। ठीक, इसके ऊपर आप जो कर्जा उठाएंगे वो आपके लिए डेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप जमीन को प्लाज कराकर या जमीन के कागजात रखा के जो पैसा उठाएंगे वो प्लाज कहलाता है, और वो आपके लिए क्या होगा, डेट होगा। और बैंक उसके ऊपर जो पैसे वापस ले रहा होगा, बैंक के लिए वो प्रॉफिट भी है, क्योंकि बैंक जनाब असल कीमत भी ले रहा है और ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहा है वापस आपसे। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल का मतलब होता है खैराती। खैराती मतलब किसी को रिलीफ देना, किसी की इमदाद करना। ठीक है, चैरिटेबल पर्पज इंक्लूड रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, एनी एडवांसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक। देखिए जी, गवर्नमेंट जो होती है ना, ये इसके जो जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो चैरिटेबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं वो जनाब मतलब है कि खैराती इदारे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसको जनाब वाला दे रही होती है और गवर्नमेंट उसको मुकम्मल तौर पर जो है रिलीफ कर देती है। तो जनाब वो यानी अमाउंट या रिलीफ जो गवर्नमेंट या कोई कंपनी को पब्लिक को देती है उसको हम चैरिटेबल पर्पज कहते हैं। और चैरिटेबल पर्पज जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 1 के तहत 2001 के अंदर जनाब ये जो है हमारे पास टैक्स पेयर जो होते हैं ना, इसके ऊपर ये जो मतलब है कि जो मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जनाब आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने गवर्नमेंट के मतलब टैक्स भी देना है, आपने बिल्कुल देना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसका एक पूरा यूनिट बनवा के देते हैं अपनी कंपनी की, खरीद देते हैं आपको, आप गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं। तो जनाब जब आपका टैक्स पे होगा ना, टैक्स, तो आप वहां पे ये शो करेंगे कि जनाब ये मैंने डोनेशन भी दी है, तो एफआईआर क्या करेगा, वो डोनेशन आपके अकाउंट से निकाल देगा, वो उतना आपको रिलीफ दे देगा टैक्स के अंदर। हाँ जी, समझ आ गई बात की? एनीवन जिसको जनाब ये पॉइंट समझ रहा हो? हाँ जी, मिस फरीना, माही, रुखसार, मारिया, महक, कलीम, नबीला, शहला, शान एंड सैयद उसामा साजिद साहब। कोई पॉइंट आपको जहां पर समझ ना आए तो बता दें। एनीवन? ऑल इज ओके? आपने ना इनके ये जो मतलब है जनाब, ये जो इसके है ना सेक्शन नंबर, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने। सेक्शन जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा मतलब है जरूरी होते हैं। अच्छा, ये नबीला आप कह रही हैं कि सर लास्ट पॉइंट, अच्छा ये चैरिटेबल पर्पज। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट एक स्टूडेंट कह रही है कि आप सर रिपीट कर दें। मैंने कहा चैरिटेबल का मतलब होता है खैरात, यानी गवर्नमेंट के अक्सर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सारे आपको पता है खैरात पे चल रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर जाएं, वहां पे अक्सर लिख होता है जनाब डोनेशन बाय फलां कंपनी, ये वो सारा। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी की मालिक हैं, आपकी अपनी प्राइवेट कंपनी है और वहां पे आपको काफी सारा प्रॉफिट होता है, आप गवर्नमेंट को देते हैं कि जनाब ये जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है ना, इसका जो बर्न यूनिट है ये मैं बनवा दूंगा। वहां पे ऊपर चाहे वो 2 करोड़ लगेगा चाहे 3 करोड़ लगेगा, आप लगाएंगे। जब आप टैक्स फाइल रिटर्न करोगे साल के बाद, तो आप वहां पे डोनेशन जाहिर करोगे कि मैंने जनाब 3 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ पे दी है बनवा के। तो एफबीआर क्या करेगा, आपकी डोनेशन को उसकी टैक्सेबल अमाउंट से माइनस करेगा। अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जितना टैक्स लग रहा है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, बाकी जितनी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर